ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. हमने लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव डन, अर्थ प्रेशर, वी हैव सीन अर्थ प्रेशर क्या होता है, राइट? इसे लेटरल अर्थ प्रेशर क्यों बोलते हैं, देन ये किस किस पे डिपेंड करता है. वी हैव सीन द टर्म्स लाइक बैकफिल, surcharge, surcharge angle. Okay, then how retaining wall looks in practical. Fine. Then तीन तरह के lateral earth pressure क्या होते हैं, like earth pressure at rest, active earth pressure and passive earth pressure. Fine. At rest पे what is the formula, K naught gamma h. K naught क्या होता है, mu upon 1 minus mu, where mu is the Poisson's ratio. And for cohesionless soil it is 1 minus sin phi. Then active earth pressure क्या होता है, when the retaining wall moves away from the backfill. Passive earth pressure क्या होता है, when a retaining wall moves towards the backfill. Fine. Then we have seen the examples कहाँ पे कौन सा केस अप्लाई होता है. And now we have seen the values कि सबसे कम active होता है, then rest, and the maximum values of passive earth pressure. Then we have seen the Rankine theory. Rankine has given us the formula, the theory, using which we can find out the values of the pressures exerted at different cases. Okay. So at rest it is K naught gamma h. K naught at rest is found out mu by 1 minus mu, and that is equals to 1 minus sin phi. यहाँ तक हो गया. अच्छा, यहाँ पे we have seen active earth pressure Ka gamma h, and the formula for the same is Ka is given by 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi, where phi is the angle of friction. The next one is passive earth pressure, and here Kp is given by 1 plus sin phi upon 1 minus sin phi. Theory we have seen. Now moving forward, submerged backfill क्या होता है, when water level is at the top of the soil. Next, अब देखते हैं कि water किस side पे है. It is on one side or the other side. Accordingly, the pressure is calculated. Now, अब last class में the first question that we have started was a retaining wall is to be provided to retain the soil of 4 meter depth. तो यहाँ पे ये देखो, ये blue वाली retaining wall है, 4 मीटर की डेप्थ है, and the angle of friction is 30 डिग्री. 30 डिग्री का एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, गामा दिया हुआ है, and it is said that the wall is top of the wall is free to yield. Free to yield मतलब ये मूव कर सकता है, and in this case we have to calculate the total thrust. Lateral earth pressure नहीं निकालना, total thrust निकालना. This part we have done. Active earth pressure निकालना था, Ka 1 minus sin phi upon 1 plus sin phi. वैल्यू डाला 1/3 आ गया था. यहाँ पे we have calculated total thrust. Total thrust होता था area of this figure. So that came out to be 48 kilonewton per meter. Now moving on to the next part of the same question. अभी आप लोगों को attempt करना है. When the wall is restrained against yielding, बहुत ध्यान से पढ़ो, wall क्या है, restrained है against yielding. मीन्स वॉल कहीं मूव नहीं कर सकती, वॉल बिल्कुल एक जगह स्टेबल है. तो लेट मी नो कौन सा केस लगेगा, फटाफट से मुझे केस बता दो यहाँ पे, क्विक. कौन सा केस लगेगा जब वॉल को मूव नहीं कर सकती? एनीवन इन द क्लास? मैम एट रेस्ट. वेरी गुड. सो यहाँ पे लगेगा एट रेस्ट वाला केस. एट रेस्ट में व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर K नॉट? 1 माइनस साइन फाई. फटाफट से अब साथ में सॉल्व कर लो. इट विल बी 1 माइनस साइन 30, 1 minus 1/2, it will be 1/2. Okay, so active or you can say the earth pressure at rest will be half K naught
gamma h square. So it will be half k naught gamma. What was the gamma? 18 and h square. H will be 4. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे you will get 72 kilonewton per meter square. Clear? If you have any doubt बोल सकते हो आप बीच में. Then the part is done. अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं सेम क्वेश्चन का. अब देखो वहां ये स्पेसिफाई कर रहे हैं टोटल पैसिव रेजिस्टेंस. तो जब इसने बोल ही दिया है पैसिव तो सोचने वाली बात ही नहीं है. यहाँ पे तो पैसिव अर्थ प्रेशर निकालना ही है. तो आ जाते हैं सबसे पहले केपी निकालेंगे. क्या है फॉर्मूला? 1 + sin phi अपॉन 1 - sin phi. 1 + sin 30 upon 1 - sin 30. What it will come? 1 + 1/2 upon 1 - 1/2. It will be 3/2 upon 1/2. It will come out to be 3. Easy लग रहे हैं? Next is Yes, ma'am. very good. Easy लगना चाहिए बस टॉपिक. अब आ जाते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर. दिस इज हाफ kp gamma h square. हाफ kp gamma h square. और जैसे ये वैल्यू डाली हमने आंसर आया 432 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द क्वेश्चन इज ओवर. हमने एक ही क्वेश्चन में तीनों पार्ट्स एक तो सीख लिए. इससे एक फायदा और हुआ. नाउ यू कैन कंपेयर कि जो मैं ग्राफ में समझा रही थी वाज दैट ट्रू और नॉट. केपी है 432 राइट. नाउ वी विल सी के नॉट कितना है 72 एंड के ए कितना आया था 48. तो वी हैव सीन सबसे ज्यादा कौन है पैसिव, फिर रेस्ट, देन एक्टिव. इसका मतलब वो ग्राफ बिल्कुल सही था जो यहाँ पे दिखाया था. दिस वन सबसे ज्यादा पैसिव, देन रेस्ट, देन एक्टिव. क्लियर? Yes, ma'am. डाउट इस क्वेश्चन में कुछ भी है तो यू कैन टेल मी. नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. बढ़े आगे? Yes, ma'am. ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द क्वेश्चन हियर सेज a retaining wall retains a cohesionless soil. तो पहला डेटा we have got is cohesionless soil of 6 meter height. Angle of internal friction is 30 degree. Unit weight 16 kilonewton per meter cube. Surcharge is 36 kilonewton per meter square. We have to calculate the horizontal thrust. जल्दी से बताओ इसमें क्या करेंगे. सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं फिर बताना. लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर. आया रेक्टेंगल, आया ही नहीं रेक्टेंगल. ये बन गया रेक्टेंगल. फिर हम ड्रॉ कर देते हैं एक लाइन. यार लाइन सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही. इंसर्ट शेप्स लाइन. शेप लाइन. यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है. नाउ आई विल ड्रॉ द लोड. तो यहाँ पे ये देखो ये हो गया हमारा लोडिंग. लोडिंग कैसे दिखाएं? आएगा पेन. ये रहा लोडिंग. दिस इज लोडिंग. एक सेकेंड. अच्छा ये लोडिंग वो तो अजीब सा दिख रहा है नो, बट समझ जाना कि ये लोडिंग है. ठीक है. 36 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द लोडिंग. गामा वी हैव सीन कितना है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. अच्छा इसके बाद क्या है 6 मीटर की हाइट है. चलो ये भी लिख दिया. अब क्या बचा है 5. ओके
फाई लिख दिया 30 डिग्री। और कुछ बचा है? बता दो मुझे इफ आई एम फॉरगेटिंग एनीथिंग। मेरे हिसाब से तो मैंने सारा डेटा लिख दिया। ठीक है, अब जल्दी से बताओ करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को फटाफट से। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मतलब क्या निकालना है हमें? बोलो यार। इसका मतलब हमें निकालना है एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्वेश्चन बहुत आसान है जी, बस पकड़ना आना चाहिए तुम्हें। एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर तो निकाल लेंगे, बट मैम एक डाउट है। क्या डाउट आ गया? मैम यहाँ पे सॉइल भी है और सरचार्ज भी है। सॉइल का तो निकाल लोगे आई सपोज, प्रॉब्लम आएगी सरचार्ज में। यस मैम। है ना? तो अब मैम हमने सरचार्ज का तो सिखाया ही नहीं। सरचार्ज इज वेरी इजी, लेट मी टेल यू। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं सरचार्ज का केस। सबसे पहले सॉइल निकालते हैं। चलो, एक्टिव अर्थ प्रेशर में पहले के ए निकालो। के ए क्या आएगा? 30 है, अभी निकाला था पीछे। क्या आ रहा था? 1/3। तो के ए आ गया। अब एक्टिव अर्थ प्रेशर दोनों का है, तो एक तो हो जाएगा हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। ये तो सॉइल की वजह से आ गया। और सरचार्ज की वजह से क्या आता है हमेशा? के ए क्यू एच। यहाँ पे के ए हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोफिशिएंट है जो नॉर्मल हम निकालते हैं। जो क्यू होता है वो ये होता है, दिस इज योर क्यू, कितना सरचार्ज लग रहा है। और एच हाइट हो गई। अब फटाफट से इसे सॉल्व कर दो वैल्यू डाल के। हाफ के ए में क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो जस्ट ग्रीन का यूज ग्रीन कलर। के ए इज 1/3। गामा कितना है जल्दी से? 16। ओके। एच विल बी 6 स्क्वायर। फिर के ए कितना है? 1/3। क्यू 36। एच इज 6। तो जरा इसे फटाफट से सॉल्व करो। कैलकुलेटर्स अपने हाथ में लेके बैठो जिससे फटाफट से आंसर बता पाओ। ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 96 प्लस 72। और ये आ चुका है 168 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो बता दो। आई मीन इस पार्ट में। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? यार बोला करो जल्दी से। है तो है, नहीं है तो नहीं है, फिर आगे बढ़े नहीं तो। मैम। नो मैम। ओके, चलो आगे बढ़ते मैम हैं। इससे जो हाँ, पूछो पूछो। मैम के ए का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला जो दिया हो 1 माइनस साइन बाय 1 प्लस साइन थीटा, उससे नहीं निकालेंगे? क्या? के whoever was speaking, can you repeat? क्या बोल रहे थे कि के ए की वैल्यू कहाँ से आई है? आई थिंक somebody's net is not clear. कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इफ somebody is having doubt तो आप मुझे चार्ट में लिख के भेज सकते हो। फाइन, अब हम मैम। हाँ, चार्ट पे लिख के भेज दो। अदरवाइज जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी यू कैन राइट डाउन। मैं वहां से कंसिडर कर लूंगी एंड आई विल क्लियर इट हियर। व्हाट्सएप में यू कैन शेयर योर डाउट। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन द वॉल फ्रॉम बॉटम इज। पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट कैसे देखेंगे? देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार चलो ये नहीं रेज कर रही हूँ। यहाँ पे एक वॉल बना देती हूँ फिर से। इंसर्ट शेप्स, और ये वॉल तैयार हो गई हमारी। ये वॉल बन गई। अब इंसर्ट शेप और लाइन। अब यहाँ एक लाइन बना दी हमने। ड्रॉ
ये इस बार ग्रीन कलर का लोड दिखा रही है, ये थोड़ा बेटर लग रहा है 36 का। अब इसमें क्या होता है, जो ये लगता है थ्रस्ट की वजह से लगता है, सपोज ये थ्रस्ट की वजह से लग रहा है, तो बहुत गंदी गंदी लाइन रखो, ड्रॉ, इंसर्ट शेप्स लाइन। तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। जो थ्रस्ट की वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो ऐसे रेक्टेंगुलर होता है, तो इसका जो फोर्स लग रहा होता है वो इसकी मिडिल हाइट पे लगता है। इसे सीधी लाइन ही मानना। तो ये है PA1, ठीक है, थ्रस्ट की वजह से। तो ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, H/2 पे। और जो हमारा सॉइल की वजह से लगता है वो टेढ़ा लगता है, और वो कहाँ लगता है, H/3 पे। तो ये क्या है, PA2, ये सॉइल की वजह से है, ठीक है, और ये सरचार्ज की वजह से था। ओके, तो हमारी फाइनल लोकेशन कैसे आती है, PA1 इंटू Y1 प्लस PA2 इंटू Y2 अपॉन PA1 प्लस PA2, एंड द क्वेश्चन इज डन। अब वैल्यू डाल दो फटाफट से। PA1 की वैल्यू क्या थी, 96 ही थी ना, हाँ बिल्कुल सही, 96 थी। यहाँ पे मैंने सरचार्ज वाला PA1 लिया है, तो 96 नहीं थी यार, बता तो दिया करो, कुछ गलत हुआ करे। 96 यहाँ पे 72, PA1 क्या है 72, और Y1 क्या है H/2, H/2 मतलब 6/2, 6/2 मतलब 3, प्लस PA2 कितना था 96 इंटू H/3 मतलब 6/3 मतलब 2, डिवाइडेड बाय इसका टोटल क्या आ रहा था 168। फटाफट से इसे सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। इट्स 2.43, यही आया सबका। मैं सॉल्व ही नहीं कर रहे, सो रहे हो। यस मैम कर रहे हैं। कर रहे हो, चलो फटाफट से करो। यस मैम इतना ही है। इतना ही आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, इन दोनों पार्ट्स में किसी को कोई डाउट, कैसे पोजीशन निकालते हैं, कैसे थ्रस्ट आई मीन सर चार्ज की वजह से टोटल थ्रस्ट निकालते हैं, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट ट्राई करो कि खुद कर पाओ, मेरे से पहले कंप्लीट कर पाओ। द थर्ड पार्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एट द बेस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एट द बेस मतलब जो ये मैंने फिगर बनाया है, इस पे बेस पे वैल्यू बतानी है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ब्लू। ये वाली वैल्यूज पूछ रहा है, ये वाली और ये वाली। तो जो ये वाली वैल्यू होती है ड्यू टू द सरचार्ज, ये होती है KAQ, तभी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल KAQH बन जाता है। और ये वाली तो तुम लोग को मैम पता ही है। हाँ मैम जो ये वाई वार निकाले इसका मतलब ये कि किसी भी स्ट्रक्चर में कहाँ पे लग रहा है अगर सरचार्ज बिल्कुल, है तो। पूरे स्ट्रक्चर में उसका CG कहाँ पे लाई कर रहा है टोटल का, तो वो लाई कर रहा है 2.43 फ्रॉम द बेस ऑफ द रिटेनिंग बुक। अगर ये पूरी ओके चेन मैम। करती है तो 2.43 नीचे से ऊपर चले जाओ, वहां पे टोटल इसका CG या लेटरल प्रेशर एक्ट कर रहा है। क्लियर। ओके ओके मैम। ठीक है, अब आ जाते हैं ये। अब फटाफट से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस निकाल दो, बता दिया मैंने कि सरचार्ज की वजह से KAQ होता है और सॉइल की वजह से KA गामा H होता है। तो यहाँ पे अगर हम निकालें टोटल स्ट्रेस, तो ये आ जाएगा KAQ प्लस KA गामा H। This is 1/3 into 36 plus 1/3 into 16 into 6। सॉल्व करो इसे जरा, क्या आ रहा है। This is 3 1s are 3, 12
3 2s out. This is 12 plus 32, and the question is done. 44 kilonewton per meter square. Clear? Anybody having any doubt? क्योंकि each and every question I'll take in a different aspect. जहां पे प्रॉब्लम आती है तुरंत बता दो. सबसे पहले हमने सिंपल ड्राई सॉइल का करा है, उसके बाद हम गए हैं कि अगर इसमें सरचार्ज एक्ट कर रहा है तो क्या होगा. अब हम वाटर को भी लेंगे, तो जहां पे फंस रहे हो वहीं बता दो, अदरवाइज पहला नहीं समझ आए तो दूसरा नहीं समझ आएगा. करो फटाफट. आगे बढ़ो या अभी यू वांट टू सी? कोई डाउट है तो बताओ. बोलो भाई यार, बोल भी दिया करो. मैम क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट में. यहाँ पे थोड़ा और ट्विस्ट है. अभी तक जो क्वेश्चन में ट्विस्ट था उसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट आ गया. अब हम एक नई रिटेनिंग वॉल बना देते हैं. अरे यार कोई और कलर नहीं है, ब्लू रिटेनिंग वॉल है. येलो रिटेनिंग वॉल बनाते हैं इस पर. अब यहाँ पे क्या है, इंसर्ट शेप. ये if the ground water table increases up to 3 meter from the ground surface. अच्छा, ग्राउंड से 3 मीटर तक हमारा वाटर टेबल है. मीन्स दिस इज आवर ग्राउंड और यहां से 3 मीटर ले लो, बिल्कुल आधा आधा. यहाँ पे हमारा पानी पानी है. ये रहा पानी पानी. नाउ इट इज अप टू 3 मीटर. तो यहाँ से ये है 3 मीटर पे, ये मार्क हो गया. एंड गामा सैचुरेटेड इज 18. चलो ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा क्योंकि 6 मीटर है इसकी हाइट. अच्छा, अब यहाँ पे गामा सैचुरेटेड है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. एंड हमें निकालना क्या है, टोटल हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑन द वॉल. मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है इन शॉर्ट. टोटल अर्थ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तो एक्टिव अर्थ प्रेशर होता है. फाइन. तो हमें पता है फाई कितना था, 30 डिग्री. गामा कितना था, 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. और गामा सैचुरेटेड हमें पता चल गया. 5 इन्होंने कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री होगा क्योंकि सॉइल तो सेम है, बस पानी तो ऐड हुआ है. तो सबसे पहले हम इसका ना अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखते हैं, उससे इजी हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है. तो इफ यू कैन सी, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. सबसे पहले अच्छा यहाँ पे सरचार्ज तो बना ही नहीं. सरचार्ज ये रहा, सरचार्ज भी है. तो सरचार्ज की वजह से हमने देखा था कि यहाँ पे कैसा अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है, रेक्टेंगुलर होता है. तो सबसे पहले सरचार्ज का रेक्टेंगुलर अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लेते हैं. ये बन गया अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑफ सरचार्ज. मैम सरचार्ज का शायद वो कुछ स्लोप टाइप का डायग्राम बनता है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तभी मैं बोल रही हूँ हर एक स्टेप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझो. यहाँ पे इफ यू सी, एक सेकेंड में हाइलाइटर यूज करती हूँ, कोई डिफरेंट कलर का पिंक यूज करती हूँ. ये देखो, जो ये पिंक वाला पोर्शन है, दिस इज द सरचार्ज, आई मीन अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरचार्ज ड्यू टू सरचार्ज. तो ये देखो रेक्टेंगुलर है, तभी तो h/2 पे एक्ट कर रहा है, जो सॉइल की वजह से है. इफ आई ड्रॉ इट इन ऑरेंज समवॉट, तो ये वाला हमारा सॉइल की वजह से है, जो पिंक वाला है विच इज ड्यू टू द सरचार्ज. क्लियर? यस मैम. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये जो बनाया है मैंने, दिस पिंक वन, दिस इज ऑफ सरचार्ज. और इसका जो लेबल
ये यहाँ पे जो एक्ट करेगा दिस विल बी P1, ठीक है, क्योंकि ये रीजन 1 मार्क कर दिया है। अब आ जाते हैं सरचार्ज की कहानी खत्म। अब ये है, ये ऊपर क्या है, सिर्फ सॉइल है। याद रखना, अगर सिर्फ सॉइल है तो सॉइल का ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, तो ये बनेगा यहाँ तक, ये देखो ये वाला मैंने डॉटेड पोर्शन यहाँ एक्सटेंड कर दिया है h/2 तक। ये क्या बन रहा है, P2, if I'll name it P2, ठीक है। ये सेकेंड रीजन है, सॉइल की वजह से बन रहा है, और जो ऊपर आता है वो नीचे तक कैरी फॉरवर्ड होएगा ही होएगा। क्लियर? दिस विल बी योर रीजन नंबर 3, P3 रेक्टेंगुलर जो आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास सॉइल तो नीचे भी है, तो नीचे वाले के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रही हूँ। दिस विल बी, ये बन जाएगा P4। P4 किसकी वजह से बनेगा, नीचे वाली सॉइल की वजह से। दिस विल बी P4। अब लेकिन एक चीज और है, और वो क्या है, पानी, जो ऊपर नहीं था बट नीचे है। तो पानी की वजह से भी क्या बनेगा, ट्राइंगुलर। ग्रीन कलर तो हो गया, रेड यूज कर लेती हूँ। तो ये बन गया पानी की वजह से P5, एंड दिस कंप्लीट्स योर अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अगर इसे बनाए बिना सॉल्व करने लगोगे पक्का फंस जाओगे। अब इससे तुम लोग कोई भी कंपोनेंट भूलोगे नहीं। सी, अब हम एक एक को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें टोटल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस निकालना है। फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से, P1 क्या होगा। यहाँ पे आई एम राइटिंग P1। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ P1? P1 है रेक्टेंगुलर, नीचे होगा KAQ, KAQH। तो KA कितना है, इट्स 1/3। Q कितना था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 36 ओके 36 इंटू H कितना है 6, राइट। तो ये हो जाएगा 36, या मैं इसे ऐसे कट कर देती हूँ, 3 1 जा 3 2 जा 12 6 जा 12 6 जा क्या आ जाएगा 22 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं P2। P2 क्या हो जाएगा, सिर्फ यहीं तक लेना है मुझे, हाफ KA गामा H स्क्वायर, हाफ KA गामा H स्क्वायर। आई विल राइट H1 स्क्वायर क्योंकि इस बार मुझे पूरी हाइट नहीं लेनी है। हाफ 1/3 गामा क्या था 16 इंटू H1 क्या है 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इफ आई कैंसिल इट, 2 8 जा 16, 3 का ये कट गया, 8 3 जा 24। हाँ, यूनिट सेम आ जाएंगी। अब आ जाओ P3 पे। P3 क्या है हमारा, नीचे रेक्टेंगुलर, तो ये हो जाएगा KA गामा H1 इंटू H2। K गामा H1 इंटू H2 क्यों हुआ, ध्यान से देखो, जो इसका ये बेस है, ये KA गामा H1 था, KA गामा H1, और नीचे वाले रेक्टेंगल की हाइट क्या है H2। तो एरिया कैसे निकल गया, KA गामा H1 H2। So this will be 1/3 into, now this time नीचे क्या है, saturated soil is there, तो gamma saturated we will take, that is 18। कहाँ गया, यहाँ पे this is KA gamma 16 into H1 is 3, H2 is 3, so this will be 16 3s are 48। now हाँ क्या हुआ, मैम गामा सैचुरेशन 18 किलो न्यूटन पर मीटर
पता था मुझे, मैंने इसीलिए बोला था कि तुम लोग में से कोई बोलेगा। यहाँ पे हम गामा ही लेंगे, गामा सैचुरेटेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो जो ये वाली गामा की वैल्यू है के ए गामा H1 वो यहाँ से आ रही है, और यहाँ तक जो गामा है वो ऊपर वाला गामा है, नीचे वाला नहीं है। सिर्फ नीचे वाले की हमें हाइट लेनी थी। जब हम नीचे वाले की सॉइल की वजह से प्रेशर निकालेंगे तो हम नीचे गामा सैचुरेटेड लेंगे। P4 क्या होगा, के ए गामा सैचुरेटेड हाफ के ए गामा सैचुरेटेड H2 स्क्वायर। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू के ए क्या है 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे वी विल टेक गामा सैचुरेटेड। देखो देयर आर टू थिंग्स, यहाँ पे गामा सैचुरेटेड है बट हम पानी अलग से कंसिडर कर रहे हैं, तो वी विल टेक इट एज सबमर्ज्ड। ठीक है, हाफ 1/3 इंटू 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा 8, 18 माइनस 10। 10 ही क्यों माइनस करे, जल्दी से बता दो, आज बता देना क्योंकि ये सब सिखा मैम रखा है। किलो न्यूटन गामा ऑफ वाटर 10 होता है ना। वेरी गुड वेरी गुड। हाफ इंटू दिस इंटू H स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, राइट। और P5 क्या आ जाएगा, हाफ इंटू गामा वाटर 10 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ इट विल बी 5 9 5 जा 45। अब फटाफट से सबका टोटल कर दो, वही तुम्हारा टोटल प्रेशर हो जाएगा। दिस विल कम आउट टू बी 201 आई थिंक। देखना एक बार, जस्ट चेक इफ इट इज करेक्ट। 201। अरे ये नहीं आ रहा। 72 प्लस 24 प्लस 48 यस मैम 201। प्लस 201 आ रहा है। अच्छा अब ये बता दो, 201 तो आ गया, किसी को कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज द क्वेश्चन वाज वेरी गुड। अगर कहीं फंसोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन में फंसोगे जब बहुत सारे चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं न्यू क्वेश्चन कराऊंगी। फटाफट से बताओ। एनीवन, कोई भी, नथिंग इज सिली, कुछ भी पूछना है यू कैन आस्क। फटाफट से। देखो मैम फटाफट। हाँ मैम P3 क्या है? क्या P3? P3 देखो ये Yes, वाला ma'am. पोर्शन है। हाँ मैं बताती हूँ, P3 पोर्शन है ये वाला, ऑरेंज शीट, दिस वन, दिस इज योर P3। एक्चुअली क्या होता है, जब ऊपर वाली मिट्टी है ना, अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस आ जाए तो जो ऊपर वाली मिट्टी है वो नीचे के लिए सरचार्ज की तरह एक्ट करती है, तभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर हो जाता है। Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, and P4? P4 है नीचे वाली सॉइल की वजह से जो प्रेशर है, पानी वाली जो सॉइल है उसकी वजह से जो प्रेशर है, दैट इज P4। ये है P4 येलो कलर का। P5 है पानी की वजह से है ना? यस, P5 इज बिकॉज ऑफ द वाटर। ये रेड कलर का जो ये है, दिस इज योर P5 एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द वाटर। और Okay, कोई ma'am. डाउट किसी को, कोई? कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। नो मैम क्लियर। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ, बट क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है तो मैं अभी मीटिंग एंड करके दोबारा सेम आईडी से क्रिएट कर रही हूँ, वहां ज्वाइन कर लो। ओके ओके मैम। ओके।